Now, students, we continue with exercise 3.4. Question number second. Here, you have to we have to form the pair of linear equations in the given word problems, and we have to find their solutions if they exist by the method of elimination. Now, so first part, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, so means हमारे पास let us take the x to be in the numerator and y to be in the denominator. So हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x upon y. So then the fraction reduces to 1. So let the fraction be x upon y. ठीक है, हम इसको लेट करेंगे और अभी आपकी फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे हम. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है, दैट इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर क्या है x, अगर हम इसमें 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y है तो वी हैव y माइनस 1, देन दिस विल बिकम 1. तो यानी कि जो पूरी फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगी. सो लेट अस सी व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी गेट, x प्लस 1 into y minus 1 is y minus 1 by cross multiplication. So your equation becomes x, y को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, -1. So my dear students, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, this one, that is x minus y is equal to -2. Now the second equation, it becomes, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बनेगी कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन की मीन्स, अगर हम न्यूमरेटर में कुछ भी ना करें एंड ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, then what happened, the fraction becomes 1/2. बेटा एक बार जब हमारी इक्वेशन बन गई then there is no problem. Cross multiply 2 into x and 1 into y plus 1 is y plus 1. Okay, so now shift the terms of x y to one side and we left with 1. So this is how you will have your second equation. Now students, now we have to use the method of elimination, and in my previous video I have explained you how to use the elimination method. That is, we have to take that variable whose coefficients are same. अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, 1 है और यहाँ 2 है, ये सेम नहीं है. या तो उसको सेम कर लें या जो सेम दिया हुआ है, जैसे ये देखो ये भी -1 ये भी -1, इनकी कोफिशिएंट सेम है. तो व्हाट विल डू, नाउ वी जस्ट सब्ट्रैक्ट देम. आई टोल्ड यू अगर साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग second equation, this one, from the first equation. So means first we should write this equation first and then 2x minus y is equal to 1. अब अगर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं हम, we change the signs. ये प्लस था, we write minus become plus become minus. ओके, याद रखना अगर यहां पर साइन ऑपोजिट होते हैं तब हम ऐड करेंगे. सो दिस -y एंड +y कैंसिल आउट, x minus 2x is -x and -2 minus 1 is -3. So in this way the value of x comes to be x equal to 3. I hope you understand till this point. Now put the value of x. So putting x is equal to 3 in either first or second, it's your choice. We put it in first. X is what, 3
minus y equals to minus 2. So therefore minus y is equal to minus 2 minus 3, which comes to be minus 5. तो इस तरह से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, पर हमें निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन. सो देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई. एक्स वैल्यू क्या है 3, द वैल्यू वाई इज 5. सो स्टूडेंट दिस इज अवर फ्रैक्शन. सेकेंड पार्ट, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. अब यहाँ पर दो लोग दिए हुए हैं, वन इज नूरी, अदर इज सोनू. नाउ अब उन दोनों की एज के बीच में देयर इज अ रिलेशन, सो हम उसको पहले लेट कर लेंगे, देयर प्रेजेंट एजेस. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and the present age of Sonu be y years. So according to first condition क्या है बच्चों, अगर आप एक बार इक्वेशन निकल गई then there is no problem. Our first motive is to find the equation. तो क्या लिखा है 5 years ago. बच्चों बताओ, अगर किसी की आज एज x years है तो बताओ उनकी एज 5 years ago मतलब पहले क्या होगी, -5. सो इट इज x -5. दोनों की एज में -5 कर देंगे. सोनू की एज में भी -5 हो गया, इट इज y -5. अब इनमें रिलेशन क्या है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस मीन्स 3 into. सो ये क्या आ जाएगा 3 into the Nouri's age. Now solve it. So x minus 5, 3y minus 15. Shift to this side. X minus 3y is equal to minus 15 plus 5, and we get x minus 3y is equal to minus 10. This is our first equation. Understand, students? Now the second equation is 10 years later, मतलब आज से 10 साल बाद. तो 10 साल बाद हमारी एज में 10 years ऐड हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, पहले हम इन दोनों की एज में 10 years ऐड कर लेंगे. ऐड बिकॉज वी हैव टू, इट इज लेटर, 10 साल बाद. सो क्या आएगा, x plus 10, दिस इज y plus 10. अब देखेंगे इनमें रिलेशन क्या है, क्या लिखा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. ट्वाइस मतलब इट इज ट्वाइस ऑफ x plus 10 is equal to 2y plus 20. Therefore x minus 2y is equal to 20 minus 10. So because 10 को वहां शिफ्ट किया, it becomes minus 10. 2y को when we shift to this side, it become minus 2y. So my dear students, our equation becomes this one. This is our second equation. अब हम इनको सॉल्व करेंगे by the method of elimination. So again we see the coefficients of x and y. अब देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x 1 था, यहाँ भी 1 है, मतलब कोएफिशिएंट सेम, साइन भी सेम. तो क्या करेंगे हम, we have to subtract. So subtracting second from first. So this we have x minus 3y equals to minus 10, and here we have x minus 2y is equal to 10. So what we'll do, we have to subtract. हम subtract क्यों करते हैं, याद रखना, यहाँ पर साइन ऑपोजिट है, तो वी हैव टू डू दिस. सो साइन चेंज, अगर मान लो यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस होता, तब हम ऐड करते. चलो ये कट जाएगा, -3 + 2 इज -y, -10 इज -20. इस तरह से y इज इक्वल टू 20 आ गया.
Now put this value of y is equal to 20 in any of the two equations. So putting y is equal to 20 in first, आपकी मर्जी है, कहीं भी पुट, यू कैन पुट, वैल्यू सेम आएंगी. x minus 3 into y, it is 20 equals to minus 10. So what we have, 3 2s are 60. So in this way your equation value क्या आ जाएगी, 60 minus 10 which is 50. So अब x और y आ गया. So x क्या थी, it is the present age of Nuri. So therefore present age of Nuri कितना हो गया, 50 years, and the present age of अगला कौन है, सोनू, this will be y which is 20 years. Okay, here you, now the third part, students, little careful about this third part, it is very important one. The sum of the digits of a 2-digit number. अब आपको पता है बेटा 2-digit number starts from 10 till 99. अब हमें ये नहीं पता कौन सा नंबर वंस प्लेस में है और कौन सा नंबर टेंस प्लेस में है. सो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस be x and the digit at ones place be y. So बच्चों, अगर आपका टेंस प्लेस y है, x है, और वंस प्लेस y है, सो व्हाट विल बी द 2-digit नंबर. याद रखना कि जब जो नंबर वंस प्लेस में होगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर टेंस प्लेस में होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर द 2-digit नंबर इज, अब टेंस में x था, वी हैव 10x, वंस में y था, वी हैव 1 into y, तो नंबर क्या आ जाएगा, 10x plus y. याद रखना, जैसे मैं बोलता हूं कि वंस प्लेस में 3 है और टेंस प्लेस में 6 है. अब 63 बनाना है हमने, तो हाउ टू राइट 63. तो बेटा हम कैसे बोलते हैं हम 63 मींस टेंस प्लेस वाले को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस वाले को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड करने में कितना आता है, 60 + 3 is 63. वही हाल है, टेंस वाले को हमने 10 से कर दिया मल्टीप्लाई और वंस वाले को 1 से कर दिया. अब क्वेश्चन इज कि 9 times the number is twice the number obtained by reversing the digits. अब मतलब अगर बेटा हमने रिवर्स करना हो, मान लो ये 63 था, हम चाहते हैं इसको 36 करना, तो कैसे करेंगे कि जो नंबर टेंस प्लेस में था वो चला जाएगा वंस प्लेस में. मींस अगर हम इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें और इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बेटा नंबर बन जाएगा 36, बन जाएगा ना. तो मतलब हाउ टू राइट दिस 2-digit नंबर इन रिवर्स ऑर्डर. सो देयरफॉर एंड द 2-digit number in reverse order, yeah, you can say by interchanging the digits in reverse order. क्या हो जाएगा, जो टेंस वाला था उसको हमने अब 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो वंस प्लेस में था उसको अपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. बच्चों एक चीज याद रखना कि इन क्वेश्चंस में ये कंडीशन तो पक्का आती है. whenever we have a question of 2-digit numbers, तो पक्का दिया होगा नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, क्योंकि इनमें हमें पक्का रिलेशन दी होगी. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ यू गेट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन टू अस दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. सम मतलब एक x एक y है, सम 9 हो गया, दैट इज x plus y is equal to 9. So students, this is your first condition. Now second is that 9 times this number, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 times is twice the number obtained by this. तो मतलब 9 times this number according to second
condition 9 times the 2-digit number is twice the number found by interchanging the digits, twice x plus 10y. ओके बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो इसका 9 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस. ओके, सो देयरफॉर नाउ वी हैव टू सॉल्व to get the equation 90x plus 9y 2x plus 20y. Now shift the terms of x and y. 9 plus 9y minus 2x minus 20y equal to 0. अब देखो 90 minus 2 is 88. 9 minus 20 is minus 11y equal to 0. अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, because here we have what common, 11 common है because it is in the multiples, so we have 11 common. तो क्या आ जाएगा, 11 8s are 88 minus y equal to 0. It means 8x minus y. 11 वहां जाएगा, 0 by 11 becomes 0. So बच्चों, this is our second equation. Now how to solve it? अब बच्चों, I told you we have to look at the coefficients. इसका कोफिशिएंट x का 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है. तो देखो कोफिशिएंट सेम है बट साइन ऑपोजिट है, तो क्या करते हैं हम, ऐड. सो वी हैव टू ऐड. सो एडिंग, एक्चुअली बेटा हम ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मीन्स हमने x या y में से कोई एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल टू 9, 8x माइनस y इक्वल टू 0. नाउ व्हेन यू ऐड, ये कट जाएगा इससे. एक्चुअली याद रखना, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज जिसका कोफिशिएंट सेम है, प्लस है माइनस है, ठीक है. सो नाउ पुट द वैल्यूज. पुटिंग x is equal to 1 in first, so x means 1 plus y equal to 9. So what is y? 9 is minus 1, कितना आ गया, 8 आ गया. So therefore what is the 2-digit number? So हमारा 2-digit number निकालना है, वो यही है, हम वैल्यू इस पे पुट करेंगे, ठीक है. हमें अगर बोला था कि फाइंड द डिजिट्स एट टेंस प्लेस, तब ये और ये निकालते हैं, ठीक है. So therefore 2-digit number is equal to what? It is 10x plus y. X is 1, y is 8, and your number is 18. So this is how you get the answer. Now the fourth part, question number second, fourth part. Meena went to bank to withdraw 2000 rupees. उसको 2000 rupees चाहिए. अब उसको वो रुपीज कैसे मिले? The cashier gave her ₹50 and 100 notes only. अब कितने notes 50 के हैं, कितने 100 के हैं, we don't know. So let the number of notes of ₹50 be x and the number of notes of ₹100 be y. Okay, so then what is the condition? Meena went to bank to withdraw ₹2000. अब 100 rupees के नोट्स निकालने हैं. हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 वो निकालेंगे. अब हमें रिलेशन क्या दिए, डेट लेट द नंबर ऑफ नोट्स, अगर आपके ये आ गया तो बताइए 50 रुपीज से उसके पास कितने पैसे हो गए, 50 इंटू एक्स. जैसे मान लो आपके पास 2 नोट है 50 के, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 50 इंटू 2 100. 100 के वाई हैं तो 100 इंटू वाई हो जाएंगे. तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन शी वांट ₹2000. तो कैसे आएगा, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000. ठीक है. हमें नहीं पता कितने नोट्स 50 के मिले, कितने 100 के मिले, बट जितने भी मिले होंगे वो नंबर ऑफ नोट्स एक्स और वाई होंगे.
तो अब इस पर कुछ कॉमन ले लो, 50 इज कॉमन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बाय 50, सो 54 ज़ा, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट रिलेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब आगे क्या लिखा है हमारा, ध्यान देखिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹15 नोट्स, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको कुल मिलाकर कितने नोट्स मिले हैं? 25 नोट्स मिले हैं, 25। तो यानी कि दिस नोट्स प्लस दिस नोट्स इक्वल 25। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड y कम्स टू बी 25। 25 नोट्स मिले हैं गिन के, कुछ 50 के हैं, कुछ 100 के हैं। अब देखिए हाउ टू सॉल्व। पहले देखिए कोएफिशिएंट, देखिए किसी का सेम है, x का भी 1 है, यहाँ भी x का 1 है, और दोनों के साइन भी पॉजिटिव है। जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सो क्या आ जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस बन गया, ये माइनस, this and this cancel out, so 2y minus y is y and 40 minus 25 is 15, तो मतलब y 15 आ गया। so putting y is equal to 15 in first, so क्या आ जाएगा? x, तो x ही रहा, 2 into y, 2 into y means 2 into 15 हो गया, is equal to 40, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, इट इज 30, तो मतलब क्या हो जाएगा? 10। सो देयरफॉर यू कैन से कि 50 रुपीज के नोट कितने होंगे उसके पास? देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स आर 10, क्योंकि x थे, और 100 भी नोट कितने थे? एंड नंबर ऑफ ₹100 notes is y, and what is y? y is 15. So students, इस तरह से we can find out the values of x and y. Now the last part, fifth part of this question. A lending library has a fixed charge for first 3 days. Means अगर आप कोई बुक वहां से लेते हो लाइब्रेरी से, तो फर्स्ट 3 days के लिए आपको एक ही चार्ज देना है, that is fixed, and एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा और दिनों के लिए लोगे तो हर दिन के लिए आपको अमाउंट देना पड़ेगा, वो भी अमाउंट गिवन दिया हमें, ठीक है। अब हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, पहले दिन के लिए चार्ज वो फिक्स है, वो हमने ₹x मान लिया, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा दिन के लिए आपको अलग पैसा देना पड़ेगा, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज हाउ मच? दैट इज ₹y। ओके, अब रिलेशन देखेंगे कि सरिता पेड ₹27, उसे 27 रुपीज दिए, एंड शी केप्ट द बुक फॉर 7 days। अब बच्चों ध्यान से आंसर देना इसका, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सोचिए, मन में सोचिए इक्वेशन क्या बनने वाली है 7 days के लिए। अब उन 7 days में 3 days का चार्ज तो फिक्स था, वो हो गया x। अब 7 में से कितने दिन बच गए? 4 days और बच गए, और हर 1 day के लिए हमने देना था y रुपीज, तो 4 के लिए कितना होगा? 4y। स्टूडेंट्स इसको पहले समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सरिता बाय द बुक, लेंट द बुक फॉर 7 days। अब उन 7 days को हम कैसे बांटेंगे? 3 + 4। अब 3 क्यों लिखा हमने? क्योंकि इन 3 दिनों के लिए चार्ज फिक्स है, वो था x। जो बाकी 4 दिन हैं उनके लिए हर एक दिन का चार्ज है y रुपीज, तो 4 दिनों कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है बेटा, अगर एक दिन के लिए y है, अगर एक दिन के लिए 2 है,
तो 4 का कितना हो जाएगा 4 into 2. So this is your first equation. Understand? Now, अब according to second condition. According to second condition. Again, read the question carefully. Now, Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. अब 5 दिनों के लिए उसने 21 रुपीज खर्चे हैं. तो बांटिए इसको. 5 को कैसे लगेंगे हम 3 + 2 बाय 3, क्योंकि इन दिनों का कॉस्ट जो है वो फिक्स है. वो कितनी है x. अब बाकी 2 दिनों के लिए अगर एक दिन की y है तो 2 डेज कितनी हो जाएगी 2y = 21. So this is your second condition. I hope you understand. अब again look at the coefficients. Coefficients of x and x are same और उनके साइन भी सेम है, मीन्स दोनों ही पॉजिटिव हैं. मैंने तुम्हें कहा था चाहे दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो वी हैव टू सबट्रैक्ट. सो सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. सो व्हाट यू हैव x + 4y = 27 and x + 2y = 21. So when you subtract, what you get? 4 minus 2 is 2, 27 minus 21 is 6. So therefore, what is y? 6/2 is 3. तो students इस तरह से y की वैल्यू 3 आ गई. Now put this value. So putting y = 3 in any of these two equations, चाहे वो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो. सो व्हाट वी हैव x + 4y, y क्या था 3 आ गया = 27. सो कितना आ जाएगा 27 - 12 is 15. सो इस तरह से x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई. सो देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days कितना है ₹x, मतलब ₹15. दिस इज फिक्स्ड एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना है. एक्स्ट्रा डे का y है तो यू कैन राइट y एंड y वैल्यू क्या है 15. सो आंसर इज सॉरी y की वैल्यू 3 है. सो आंसर इज 3. सो इस तरह से वी कैन फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एज वेल एज द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे.